हाँ जी. Hello students. In this session we will do numericals of symmetric and skew symmetric matrices. The question is in front of you, that is, if 0 2 C A B 1 3 minus 1 0 is a skew symmetric matrix, then find A B C. Let us rename this matrix as A. Capital A 0 2 C A B 1 3 minus 1 0. Now, by the definition of skew symmetric matrix, since A is a skew symmetric, therefore A transpose will be equal to minus A. ठीक है, this is the definition of skew symmetric matrix. Therefore, take the transpose of A, that is interchange rows and columns. Substitute the value of A as well. 0 2 C A B 1 3 minus 1 0. Right. Take this negative sign inside the bracket. Always remember that when a scalar means any number, here the number is minus means minus 1. ठीक है, so minus 1 will be multiplied with whole matrix. ठीक है, means each entry of the matrix. Whenever a scalar is multiplied with a matrix, then that scalar is got multiplied with each entry of that matrix. Clear? So it will become 0 minus 2 minus C minus A minus B minus 1 minus 3 1 and 0. So now, by equality of matrices, each entry will be equal to its corresponding entry. Therefore, A will be equal to minus 2. C will be equal to minus 3. B will be equal to minus B. Moreover, the matrix is skew symmetric, therefore its diagonal entries means 0, B, 0. These are the diagonal entries. These must be 0. ठीक है, so यहाँ से भी आपके पास क्या आ जाएगा? B 0. So this is the answer. Is it clear? Take a pause and note it. I hope you have noted down. ठीक है, now next question is, if A is a square matrix, then A plus A transpose is a symmetric, A minus A transpose is a skew symmetric, A into A transpose and A transpose into A are symmetric. ठीक है, these are general. So we have to prove in general, not by taking a particular example. I have told you many times in +1 also that whenever you are to prove a universal result, then you are not supposed to take any particular example to prove that. You have to prove that in general. ठीक है, so you can't take any example like you can't assume a matrix like 2 3 1 1 2 3 etc. Means don't take particular example. Clear? So first part, A plus A transpose is symmetric. इसको प्रूव करते हैं पहले. Now remember, the matrix which is proven to be symmetric, उसका जो ट्रांसपोज है that must be equal to the matrix itself. Here A plus A transpose, we are to prove A plus A transpose is symmetric. That means we will take the transpose of this matrix. Means A plus A transpose का ट्रांसपोज. ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज अगर इक्वल आ गया इसी के A प्लस A ट्रांसपोज के, तब ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक हो जाएगी. ठीक है, तो अब मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी दैट कि जो प्लस माइनस में ट्रांसपोज है वो एज इट इज अलग अलग हो जाता है. मीन्स इट विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, मीन्स इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज. ठीक है, नाउ एक और प्रॉपर्टी हमने की थी कि जब ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ बन जाती है. ठीक है, अब क्योंकि प्लस में हम इधर उधर कर सकते हैं, प्लस जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, दैट्स व्हाई इट विल बी इक्वल टू, चाहे A ट्रांसपोज प्लस A लिखो चाहे A प्लस A ट्रांसपोज लिखो, वन एंड द सेम थिंग. सो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया.
मतलब हमने एक मैट्रिक्स ली थी जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, देयरफॉर जो ये मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट में वी आर टू प्रूव दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज skew symmetric. So let us start to prove. Now हमने क्या प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। मीन्स हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, सो टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस। A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, माइनस में भी ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, मीन्स A का ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A बन जाता है, माइनस कॉमन ले लो, A का साइन प्लस हो जाएगा, A ट्रांसपोज का साइन माइनस हो जाएगा। सो A माइनस A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज था वो माइनस के इक्वल आ गया। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स A minus A transpose is skew symmetric. ठीक है, take a pause and note it. Hope you have noted down. Now third part, A transpose into A and A into A transpose are symmetric. Again, to prove a matrix is symmetric, its transpose must be equal to itself. So we will take transpose of these two matrices one by one. So firstly, taking transpose of this. Now in multiplication I have told you that order changes, means last matrix comes first and so on. ठीक है, तो ये बाद में आ जाएगी, समझ में आया ये स्टेप। सबसे पहले लास्ट वाली मैट्रिक्स आएगी, मीन्स इस A का ट्रांसपोज होगा, फिर उससे पहले वाली A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। अगर यहाँ पे आगे कोई थर्ड मैट्रिक्स होती तो वो यहाँ पे एंड में चली जाती। ठीक है, नाउ A ट्रांसपोज, अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है A। ठीक है, देयरफॉर A ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज जब हमने लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल। A ट्रांसपोज A जो है दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट A इंटू A ट्रांसपोज। अब इसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। अगेन सेम वे में लास्ट वाली मैट्रिक्स का पहले आएगा ट्रांसपोज, मीन्स A का। अब A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है A, so A into A transpose is symmetric. ठीक है, so hope this question is clear to you. Note it down. हाँ जी, this is very important topic जो मैंने आपको अभी कराया था, express any square matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrices. ठीक है, तो पेपर में आपको 4 मार्क्स में आ सकता है ये, चाहे 3x3 मैट्रिक्स का है या फिर 2x2 मैट्रिक्स का है। ठीक है, आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन है एक्सप्रेस A इज दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। प्रोसीजर सेम वही है जो हमने लास्ट थ्योरम में किया है। क्या किया था हमने, A को क्या लिखते हैं, वी नो दैट करके स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, ठीक है, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ A प्लस होके एक सिंगल A बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या किया था, इसको P नेम दे दिया था, इसको Q नेम दे दिया था, वेयर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट नहीं गिवन थी, यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है तो P और Q हम फाइंड करेंगे। सो फाइंड करते हैं, P इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। सो वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू क्या है 342, 254, 335। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, नाउ ऐड कर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 5 + 5 10, 4 + 3 7, 3 + 2 6, 3 + 2 5, 3 + 4 7, 5 + 5 10। ठीक है,
take this 2 inside, it will be divided by each entry. 6/2 3, 3, 5/2 3, 5, 7/2 5/2 7/2 and 5. This is your P. ठीक है. Now similarly we will find Q. Q is half of A minus A transpose. So A क्या है आपका? अगेन 3 4 2 2 4 2 5 4 3 3 5 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देंगे सेम वे में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? माइनस. तो माइनस करो. 3 - 3 0 2 -1 -2 0 1 1 -1 0. Take this 2 inside, it will be divided with each entry. 0 1 minus half, -1 0 half, half minus half and 0. This is Q. Note up to here. ठीक है. तो हमारे पास P और Q आ चुके हैं. अब हमने क्या प्रूव करना है? देखो, दो क्वेश्चन में ना 2 चीजें थी. कौन कौन सी? एक थी कि A को हमने सम में रिप्रेजेंट करना है. सम किसका होना चाहिए? 2 मैट्रिसेस का. वो 2 मैट्रिसेस हमें मिल चुकी है. ठीक है. लेकिन उस पे एक कंडीशन है कि इन दोनों में से एक होनी चाहिए सिमेट्रिक, दूसरी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक. सम में तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, लेकिन अब हमारा काम कितना है? हमने एक सिमेट्रिक प्रूव करनी है, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक. तो वो करने जा रहे हैं. सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए ट्रांसपोज चाहिए. सो आई एम टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ P फर्स्ट ऑफ ऑल. सो P की वैल्यू पुट करके ट्रांसपोज लिया है. ले लो. चेंज रोज इनटू कॉलम. दिस रो, दिस कॉलम, दिस रो, this column, this row, this column. So you can see that there is no change. P भी सेम था. So P ट्रांसपोज, ये पूरा P है. ये जो मैट्रिक्स है यही P थी हमारी. Therefore P ट्रांसपोज इज P. Therefore P is symmetric. ठीक है. अब Q का ट्रांसपोज लेंगे. Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? Q की वैल्यू है 0 1 minus half, -1 0 half, half minus half 0. ट्रांसपोज लेंगे. क्या आएगा ट्रांसपोज? 0 -1 half, 1 0 minus half, half 0. ठीक है. इस पूरे में से माइनस कॉमन लो. 0 1 minus half, -1 0 हाफ, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेते हैं मींस कोई चीज अंदर से बाहर निकालते हैं या फिर मैट्रिक्स में बाहर से अंदर लेके जाते हैं, तो हर एक एंट्री के साथ वो चीज होती है. सो माइनस बाहर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर सारी एंट्रीज के साइन चेंज होंगे. अब देखो यही तो Q है. 0 1 minus half, -1 0 half, half -1 0. यही तो Q है हमारी. सो दिस इज व्हाट? दिस इज Q. Therefore Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q. Therefore Q इज स्क्यू सिमेट्रिक. हो गई एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. लेकिन अब आंसर में कैसे कंक्लूड कैसे करना है? Therefore A is written as sum of 2 matrices, ठीक है, P and Q, where P is, जो P का आंसर आया वो लिखोगे यहाँ पे, which is symmetric, ठीक है, and Q is, what is Q? Q is 0 1 minus half, -1 0 half, half minus half 0, which is skew symmetric. ठीक है. ऐसे कंक्लूड करेंगे आप अपने आंसर को. अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जाके ना एंड में वो क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं. जो P और Q की वैल्यू आती है ना, P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, बाद में प्लस कर देते हैं, फिर वो वापस से A आ जाता है. विच इज रॉन्ग. ये आपको नहीं करना है. आपको उनको प्लस करके A के बराबर आपको नहीं दिखाना है. अपने रफ वर्क में आप जस्टिफिकेशन के लिए कर सकते हो. ठीक है. होप की समझ में आया होगा. हाँ जी. नाउ देयर आर सम टिपिकल प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज show that all positive integral pairs of symmetric matrix are symmetric. Means we are given a symmetric matrix. ठीक है. So let
just take let A be any symmetric matrix. First thing, ठीक है. Secondly, all positive integral power. Positive integral power means let n, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, जो नेचुरल नंबर होता है. सो लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी पावर भी सिमेट्रिक होगी. ठीक है, ऑल इंटेग्रल पावर्स आर ऑल्सो सिमेट्रिक. सो हमें ये प्रूव करना है. सो गिवन हमारे पास है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रूव करते हैं. अब जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना होता है उसका ट्रांसपोज लेते हैं. सो मैं यहाँ पे किसका ट्रांसपोज लूंगी, ए रेज टू पावर एन का. ठीक है, अब ए रेज टू पावर एन को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितने टाइम्स, एन टाइम्स. ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही. अब नाउ बताया हुआ है मैंने दैट मल्टीप्लीकेशन में अगर 2 की मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज लेते हो तो पिछली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले आता है, फर्स्ट वाली का बाद में आता है ना. अगर 3 होते हैं तो ये भी मैंने बताया था कि पहले सी का ट्रांसपोज होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा, एंड सो ऑन. मतलब लास्ट वाली का पहले होता है. ठीक है, सो ये सारी की सारी ए ही है, तो मतलब जो लास्ट वाला ए होगा ये वाला, इसका ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर उससे पिछली वाली ए का ट्रांसपोज आएगा, फिर उससे पिछली वाली ए का ट्रांसपोज आएगा, चलते चलते एंड में इस ए का ट्रांसपोज आएगा. और ये है कितने टाइम्स, अगर ये सारे एज एन टाइम्स हैं तो उनके ट्रांसपोजेस ये भी तो एन टाइम्स ही होंगे. ठीक है, तो मतलब ए ट्रांसपोज कितने टाइम्स हो गया, एन टाइम. अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के. क्यों, बिकॉज ए इज सिमेट्रिक. अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा. सो हो गया क्लियर, आई थिंक ये ए एन ही है. अब इसका क्या मतलब है कि ए एन का जब ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आया, ए एन के. देयरफॉर जो ए एन है दैट इज सिमेट्रिक, हेंस प्रूव्ड. क्लियर, नोट कर लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक as well as skew symmetric is a null matrix. Means we are given a matrix. So let कर लेते हैं let A. अब मैट्रिक्स की मैंने जनरल नोटेशन बताई हुई है, क्या होती है, AIJ. AIJ is a matrix, ठीक है, which is both symmetric and skew symmetric. ठीक है, दिस इज गिवन टू अस दैट देयर इज अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. टू प्रूव क्या है कि जो ए है वो नल मैट्रिक्स है. नल मैट्रिक्स मींस जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, सो इसको हम जनरल वे में करेंगे. देखो फर्स्ट में क्या है कि ए इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, बेसिकली एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ. देखो एग्जाम्पल ले रही हूं. सपोज ये है 3 1 1 2. ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक क्यों है, सिमेट्रिक में हमें डायगोनल से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए. अब जब ट्रांसपोज लेते हो ना, जब ट्रांसपोज लेते हो तो डायगोनल एंट्रीज का कुछ नहीं होता, वो अपनी जगह पे ही रहती है. मतलब यहाँ पे 3 2 ही रहेगा. ठीक है, फर्क कहाँ पे पड़ेगा, फर्क पड़ता है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं. सिमेट्रिक में नॉन डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं. सेम मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा. मतलब कैसे, अगर 3 क्रॉस 2 की बात कर 3 क्रॉस 3 की बात करूं तो ये तो ठीक है, इन पे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये एंट्री इसके इक्वल होनी चाहिए. मतलब A12 दिस इज A12, दिस इज A21. ठीक है, ये एंट्री इसके इक्वल होनी चाहिए, मींस A13 दैट शुड बी इक्वल टू A31. ये एंट्री इसके इक्वल होनी चाहिए, मींस A23 मस्ट बी इक्वल टू A32. तो आप जरा देखोगे 1 2 2 1 आपस में कम्यूनिटी तो कर रहे हैं. 1 3 3 1 2 3 3 2 उल्टा हो रहा है. मींस फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ मस्ट बी इक्वल टू AJI. लेकिन कौन, सॉरी, AIJ इज इक्वल टू AJI. ठीक है, अब कंडीशन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो IJ है वो इक्वल नहीं है. 1 और 2 नॉट इक्वल, 1 and 3 नॉट इक्वल, 2 and 3 नॉट इक्वल. तो मतलब IJ के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर IJ के इक्वल हो गया तो वो तो डायगोनल एंट्री बन जाएगी ना.
उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ कि A इज अ सिमेट्रिक, देयरफॉर Aij इज इक्वल टू Aj फॉर I नॉट इक्वल टू J मीन्स for I not equal to J means we are talking about non-diagonal entries, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी बात, A is a skew symmetric also, तो उसके लिए पहली बात तो डायगोनल एंट्रीज 0, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं, बताया हुआ है मैंने। अब डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, जहां पे I और J सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल A11, A22, A33, A44 मीन्स AI या फिर AJJ, ठीक है। पहली बात तो ये मीन्स AIJ 0 होते हैं फॉर ऑल I इक्वल टू J, मतलब जब I और J इक्वल हो जाएंगे तब वो एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको समझा, हाँ जी, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मैं इसका ट्रांसपोज ले रही थी, इट विल बी 0 3 -1 -3 0 -2 1 2 0, ठीक है। दैट मीन्स डायगोनल एंट्रीज आर 0 फॉर श्योर, एंड -3 is negative of this 3, 1 is negative of this 1, 2 is negative of this -2. What does it mean? That A12 is equal to minus A21, A31 is equal to minus of A13, A32 is minus of A23. क्लियर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो Aij है वो AJI के नेगेटिव के इक्वल होगा when I is not equal to J. These things are not equal to J. ठीक है जी। So this is the condition of skew symmetric matrix. So this condition we will apply in our question that diagonal entries is 0. यहाँ पे लिख देते हैं also. Diagonal entries are 0. That is Aij is equal to 0 for every I equals to J. And Aij is equal to Aji for every I not equal to J, ठीक है। नाउ इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ फ्रॉम नेगेटिव ऑफ Aj, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन, ये वाली और ये वाली अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं अगर इन दोनों इक्वेशंस, तो क्या आता है Aij प्लस Aij, दैट इज 2Aij. Aji will cancel out this minus Aji, so it will be Aij is equal to 0. इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन थी, I not equal to J, यहाँ पे भी क्या कंडीशन थी, I not equal to J, तो यहाँ पे भी क्या कंडीशन लेंगे, I not equal to J, ठीक है। ऑल्सो यहाँ से इसको स्टार इक्वेशन मान लो, Aij is equal to 0 for every I equal to J, मीन्स कुल मिला के यहाँ क्या बोल रहा है कि I नॉट इक्वल टू J के लिए भी 0 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि I इक्वल टू J के लिए भी 0 है। तो इसका क्या मतलब है कि Aij 0 हो गया फॉर एवरी I एंड J, मतलब हर एंट्री 0 हो गई। हर एंट्री 0 है तो मतलब A क्या है, एक नल मैट्रिक्स या फिर 0 मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड।